Hello everyone, my name is Zainab and I welcome you all to our current legal knowledge session wherein we'll be discussing the major news happenings for the month of November. So let's begin without any further ado. So our first news is if the motive for crime is not a caste attack, provisions of SC/ST Act can't be invoked. The Karnataka High Court says that. So यहाँ पे जो ये particular matter था, this was between two people. One person was an SC/ST person and the other person was a non-SC/ST person. और इन दोनों के बीच में जो dispute चल रही थी, that was with respect to a property. सो अब क्या रहा कि जो SC/ST पर्सन था उसने नॉन SC/ST पर्सन के ऊपर बोला कि इस पर्टिकुलर इंसान ने उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की है XYZ, तो उसने उसके ऊपर काफी सारे लॉस के अंदर केस किया। अब जब कर्नाटका हाई कोर्ट के पास ये पर्टिकुलर बात गई तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि यू डूइंग अ पर्टिकुलर केस अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ इज फाइन, but then for you to invoke the Prevention of Atrocities Act against SC/ST Act, it is essential कि आप ये देखें कि why was this particular SC/ST Act even amended? उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये जो SC/ST Act इन्वोक था, ये हमने SC/ST Act को बनाया था, वो क्यों बनाया था? हमने इसलिए बनाया था कि हम ये जो भी पर्टिकुलर वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकें, इनके ऊपर जो भी कुछ कास्ट बेस्ड अटैक हो सके, उनको प्रोटेक्ट कर सकें, इनकी कास्ट के अगेंस्ट जो भी पर्टिकुलर हेट्रेट रहता है, उनको कर्टेल कर सकें। तो दैट वाज द वेरी मच प्रोविजन, like that was the very much objective as to why the SC/ST Act was enacted. Now उसके बाद यहाँ पे एज आई सेड कि दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट थी दैट वाज सर्टेनली रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी wherein there was no caste involved wherein there was no caste based comment as such. Now what happened was कि कोर्ट ने यहाँ पे बोला that section 3 of the act clearly provides कि not in any offense wherein there is a SC/ST involved हम यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट को लगा सकते हैं। उन्होंने कहा only in those particular acts wherein there is any particular comment onto a SC/ST person's caste or any particular act which is done to demean him, humiliate him, cause him indignity or anything of that sort, तब जाके आप इसका प्रोविजन लगाते हैं and not in every other offense that you drag the provision of this very particular law. तो ये इस केस में यही बात हुई थी, ठीक है। Now let's move on to the next news. The next news is Haryana Employment of Local Candidates Act 2020. Now, this is the most talked about law which has come अभी, and आप अक्सर इसे न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे and so on and so forth. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हरियाणा ने नोटिफाई किया है State Employment of Local Candidates Act 2020. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये आएगा इन इफेक्ट फ्रॉम 15th of January 2022. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है what is it even doing? This act is providing the employment opportunities to these particular local candidates of Haryana in their own state. अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे, सोसाइटीज पे, ट्रस्ट पे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पे, पार्टनरशिप फर्म पे, या कोई भी ऐसे इंसान पे जो कि 10 या 10 से लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करता है इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज और इन वेंडिंग एनी सर्विसेज इन हरियाणा. सो नाउ this is ये particular act इनके ऊपर applicable होता है. Now let's talk about the highlights of this particular act. तो the first highlight is that कि जो employer है उसके ऊपर ये mandatory thing है कि वो अपने employees को register करे onto a portal, and that portal is what? हरियाणा उद्यम memorandum, and उन employees को register करे which who are earning less than 30,000. ठीक है, अगर ये particular employers अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर नहीं करते हैं या ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बात कही है कि जो एम्प्लॉयर है उसे ये इंश्योर करना है दैट 75% ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स आर एम्प्लॉयड बाय दिस मींस, और दीज एम्प्लॉयज के बारे में किसको रेफर कर रहा है? उन एम्प्लॉयज को रेफर कर रहे हैं हु आर अर्निंग लेस देन 30,000. अच्छा, now when they say about they have to be from Haryana, there is no bar as such with respect to the district, ठीक है। अब जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं जिन्हें इस पर्टिकुलर एक्ट का बेनिफिट चाहिए वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट का बेनिफिट ले सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड ऑन टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल एंड द रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ
इन केस ऑफ अ सिचुएशन, मानिए ये हुआ कि एक एम्प्लॉयर है, उसे कुछ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है XYZ, बट जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं या जो कुछ भी हैं उसे ऐसे नहीं मिले विच हैव द रिक्विजिट कैलिबर, प्रोफिशिएंसी और स्किल, तो फिर क्या होगा? तो वो जो एम्प्लॉयर है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज अंडर द एक्ट से एग्जेम्पशन ले सकता है। कैसे एग्जेम्पशन ले सकता है? वो ये बोल सकता है कि मुझे कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं, लोकल कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं हु सूट द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन को या तो एक्सेप्ट कर सकती हैं, मान ले सकती हैं कि हाँ नहीं मिल रहे हैं, या तो वो ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकती हैं, या तो वो बोल सकती हैं कि नहीं, आपको इन्हीं लोकल कैंडिडेट्स को ट्रेन करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के ऊपर एक लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एक क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करनी है स्टेटिंग कि उन्होंने कितने एम्प्लॉयज को अंडर दिस एक्ट ऐसे रिक्रूट किया है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर एक्ट एज आई सेड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 15th January 2022। तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, दैट इज टिल 2032 दिस पर्टिकुलर एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर डोमिसाइल लिंक रिजर्वेशन दिया है, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट इसके पहले आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा कुछ किया है, लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफी सारे लूप होल्स, काफी सारे लैक्विनास, काफी सारे इश्यूज हैं। और वो इश्यूज क्या हैं? वो इश्यूज हैं अंडर दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स व्हिच आई मेंशन्ड बिफोर यू। अंडर आर्टिकल 14 कि भाई एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट एवरी सिटीजन शैल बी हैविंग द राइट टू इक्वालिटी, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई आप हरियाणा के डोमिसाइल लोगों को एक सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिट दे रहे हैं और सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं और किसी को दे नहीं रहे, तो हमारा आर्टिकल 14 ब्रीच हो रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 16 भी ब्रीच हो रहा है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है? दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। अब यहाँ पे क्या है? वो पर्टिकुलर लोग हु आर रिसाइडिंग इन हरियाणा एंड हु हैव द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, उन लोगों को ही सिर्फ ये बेनिफिट मिल रहा है और सबको लोग मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो क्या उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, ठीक है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी हमें ये राइट देता है दैट वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हु आर नॉट इवन फ्रॉम हरियाणा और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप उनका ये राइट कर्टेल कर रहे हो कि वो वहां पे हरियाणा में जाके जॉब्स या कुछ लेंगे भी या कुछ, तो उन्हें वो नहीं मिल पाएंगी बिकॉज the local candidates or the local domicile candidates have a preference over the any other candidates, ठीक है। तो ये था हमारी सेकेंड न्यूज। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज। अब यहाँ पे द न्यूज इज reevaluate cases for remission for 14 years of incarceration even if the appeal is pending in the high court। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है टू द यूपी गवर्नमेंट। अच्छा, सबसे पहले इसको हमें समझने के लिए ये समझना रहेगा दैट इज व्हाट इज incarceration, फिर हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा as to what is this remission। Now, before we do that, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेमिशन के बारे में ही नहीं बताऊंगी, मैं आपको ऑल द रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी बात करूंगी एंड कुछ हो सकता है आपको ऐसा सुनने में आए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कि आपने किसी को इम्प्रिजन किया है, ठीक है, इम्प्रिजन किया है। अब वो पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जेल के अंदर लोग जो बंद हैं एंड हु हैव बीन इन द जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 years और मोर इनसाइड द जेल्स, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है टू द यूपी गवर्नमेंट और उनके साइड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ये कहा है कि आप उनका केस कंसिडर कीजिए फॉर रेमिशन। अच्छा, अब ये रेमिशन क्या है ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बट इससे रिलेटेड थोड़े से टर्म्स और समझने पड़ेंगे कि टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज रेमिशन। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि किसी को आप कंप्लीटली अब्सॉल्व कर दें फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। मानो जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वाज अजमल कसाब, राइट? अजमल कसाब, आई होप हम सबको पता हो, है ना? अजमल कसाब द 26/11 टेरर अटैक्स में, मुंबई टेरर अटैक्स में जो टेररिस्ट पकड़ाया गया था, ठीक है। अब अजमल कसाब को अगर डेथ पेनल्टी या कुछ भी दी गई थी, ठीक है, अब अगर हम उसे पार्डन दे देते, मैं ये नहीं कह रही हूं कि दे दिया था, अगर पार्डन दे देते तो हम उसे कंप्लीटली अब्सॉल्व कर देते उसके वो पर्टिकुलर सेंटेंस से, पनिशमेंट से या उसके ऊपर जो भी पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन हमने लगाई हो। तो ये क्या हुआ हमारा? पार्डन।
कि आपके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेंटेंस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ भी नहीं रहेगा। सेकेंड इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है कि आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि मानिए किसी को डेथ पेनल्टी मिली हो, ठीक है, अब अगर इस डेथ पेनल्टी को हम कम्यूटेशन के अंदर लेके जाते हैं तो आप इस डेथ पेनल्टी को क्या बना सकते हैं फॉर लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? आप इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज समथिंग नोन एज रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि आप किसी का सेंटेंस रिड्यूस करते हैं विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। क्या मतलब इसका मैम? कैसा कैरेक्टर की बात हो रही है? देखो, अगर मानो किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है फॉर 10 years, ठीक है, फॉर 10 years किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है और उसे हमने रेमिशन किया है या रेमिट किया है, तो हम क्या करेंगे? वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, बट उसका जो टाइम पीरियड है या कुछ है हम वो रिड्यूस कर देंगे। मे बी फ्रॉम 5 years वील मेक इट टू, मे बी फ्रॉम 10 years वील मेक इट टू व्हाट? 5 years। तो ये क्या हुआ? रेमिशन हुआ। देन देयर इज समथिंग नोन एज रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि अगेन यहां पे भी सेंटेंस रिड्यूस होता है, पर वो तब रिड्यूस होता है इन केस दे आर नोइंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ स्पेशल फैक्ट। ठीक है, मानो एक पर्टिकुलर फीमेल है, ठीक है, उसको डेथ पेनल्टी या कुछ दी गई है, ठीक है, एंड देन राइट एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन दे आर एग्जीक्यूटिंग द डेथ पेनल्टी या कुछ भी, उन्हें पता चलता है दैट दिस पर्टिकुलर फीमेल इज प्रेग्नेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो क्या यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है एक स्पेशल फैक्ट। तो इसे हमने क्या कहा? अगर हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर फीमेल को डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे चेंज कर दें, और हम क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज ऑन द नोइंग ऑफ सम स्पेशल फैक्ट। एंड व्हाट इज दैट स्पेशल फैक्ट? दैट शी इज प्रेग्नेंट, राइट? तो ये क्या रहेगा? रिस्पाइट रहेगा। ठीक है, देन देयर इज समथिंग नोन एज रिप्राइव। जब आप किसी का एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली ऑफ डेथ को डिले करते हो या थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए अवॉइड करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्राइव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानिए कि किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, ठीक है, किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, राइट? अब ये जिसको भी डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मानो ये पर्टिकुलर डेथ पेनल्टी होनी है ऑन टू 30th of December, बट ये जो पर्टिकुलर डेथ पेनल्टी होनी है कब होनी है? ऑन टू 30th of December होनी है। डेथ पेनल्टी से मतलब समझते हो ना आप लोग कि किसी को हम फांसी दे दें या कुछ दे दें, ठीक है, तो हमने किसी को डेथ पेनल्टी देनी है ऑन टू 30th of December। बट मानो इस पर्टिकुलर इंसान को जिसको हमें डेथ पेनल्टी देनी है, उनका जो भी कुछ है, उनका उनका कोई बेटे की शादी या बेटी की शादी या उनके घर पे किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एंड ही आस्क्ड द कोर्ट और समथिंग कि भैया आप मेरे को रिप्राइव दे दें, मेरा ये जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ आपको करना है ये आप थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए उसे अवॉइड करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर उसे अवॉइड करते हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे रिप्राइव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द यूपी गवर्नमेंट कि भाई आप केसेस कंसिडर कीजिए ऑफ रेमिशन आफ्टर 14 years ऑफ इनकार्सरेशन। ठीक है, रेमिशन मतलब कि क्या करना था? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू दैट, ये बात तो हमने खैर समझ ली। अब ये पर्टिकुलर चीज वो कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? नाउ इफ यू अटेंडेड माय क्लासेस और इफ यू वुड हैव बीन नोइंग अदरवाइज आल्सो, गवर्नमेंट अपना जो भी पर्टिकुलर कुछ काम करती है दैट हैज टू बी नेसेसरीली बैक्ड बाय लॉ। अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर सकती है। सो नाउ वेयर इज दिस प्रोविजन इवन contained in, and what does this provision even say? Let's first discuss about that। और इसके अराउंड एक मिथ भी है। So बहुत से लोगों को लगता है कि life imprisonment means for a period of like 14 years, 15 years, 21 years and a lot of random theories around it। देखो, ये पर्टिकुलर चीज यहां से आती है कि भाई सेक्शन 432 एंड सेक्शन 433 ऑफ द CRPC बेसिकली हैज सम प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रेमिटेशन एंड कम्यूटेशन। नाउ रेमिटेशन में क्या होता है कि जब एक पर्सन को आप सेंटेंस कर देते हो फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर ऑफेंस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो उसका ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस। कुछ भी वो पर्टिकुलर कंडीशंस लगा सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन पे, और यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग जज होगा कोर्ट का, वो अपना ओपिनियन देगा क्या हम इसे रेमिट कर भी सकते हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रिड्यूस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग,
ये मैंडेटरी नहीं है करना, ये आप कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे भी पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट के पास है। क्या हम इसे रेमिट करें, क्या हम इसे रेमिट नहीं करें, क्या हम सेंटेंस रिड्यूस करें ऑन टू द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस, या हम नहीं करें। ठीक है, तो ये रही एक चीज। दूसरी चीज होती है पावर टू कम्यूट। कम्यूटेशन में जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट यू रिड्यूस द सेंटेंस, राइट। अब यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ पे भी क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन किसी का सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि डेथ पेनाल्टी को आप किसमें चेंज कर सकते हैं? विद एनी अदर पनिशमेंट अंडर आईपीसी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आप किसमें चेंज कर सकते हैं? फॉर अ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 14 years ऑफ फाइन। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को आप किसमें चेंज कर सकते हैं? सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कर सकते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट को आप किसमें कर सकते हैं? फाइन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा? कम्यूटेशन रहा। अब जो मैं बात कह रही थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि इट इज अ पीरियड ऑफ लाइक 14 years और समथिंग। नो, इट इज नॉट। देखो, यहाँ पे उनके पास एक पावर है कि वो रेमिटेंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं, दे कैन कंसिडर, वेदर दे शुड कंसिडर या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बात थी इस पर्टिकुलर केस में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन इन जेल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 years और मोर, तो आप उसको रेमिट करने का, उसका सेंटेंस को रिड्यूस करने का कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस। ठीक है, नाउ वेल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट our next news. The next news is Juvenile Justice Act Delhi High Court issues timelines for completing age determination of juvenile in conflict with law. अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? वर्ड यूज हुआ है juvenile in conflict with law. Now first off, who is a juvenile in conflict with law? A juvenile is any particular person who is below the age of 18 years, right? अब ये particular juvenile अगर he or she comes in contact with the justice system, क्योंकि वो हम उसे किसी ऑफेंस के लिए सस्पेक्ट कर रहे हैं या वो अक्यूज है, तो हमने उसे क्या कहा? हमने उसे कहा that he or she is a juvenile in conflict with law. ठीक है, अब यहाँ पे एक बेंच ऑफ जस्टिस ने सिद्धार्थ मृदुल एंड अनूप जे भंभानी, उन्होंने कुछ डायरेक्शंस ले डाउन किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटिंग द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द जुवेनाइल, ठीक है, हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? इन ऑल केसेस पर्टेनिंग टू जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस कमिटेड, upon the directions issued by JJB, upon production of the juvenile before it, कुछ गाइडलाइंस को हमें adhere करना है। वो गाइडलाइंस क्या है? ऑब्वियसली वील बी टॉकिंग अबाउट इट, बट पहले इसके बारे में बात करते हैं। वो कह रहे हैं उन सारे केसेस में, ठीक है, एक जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ने अगर कोई भी ऑफेंस किया है और वो जब प्रोड्यूस करा जाता है बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो कुछ भी डायरेक्शंस देते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो क्या है? वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। द फर्स्ट गाइडलाइन इज फाइल डॉक्यूमेंट्स बिफोर द JJB प्रूफ ऑफ एज। अच्छा, JJB इन केस यू डू नॉट नो इज द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, नाउ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये जो है इन्होंने फर्स्ट गाइडलाइन ये रखी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है केस का, उसे कलेक्ट करना है और फाइल करना है JJB के सामने कुछ रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ एज ऑफ द जुवेनाइल। ठीक है, क्या करना है उसको? कि कुछ भी जो भी कुछ रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रूविंग द एज ऑफ द जुवेनाइल, उसे वहां पे सबमिट करना है बिफोर द JJB विद इन 15 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस। मतलब कि एक जुवेनाइल अगर उनके पास आया, ही और शी इज प्रोड्यूस बिफोर द JJB, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं बिफोर द JJB विच आर विद रिस्पेक्ट टू प्रूविंग ऑफ द एज ऑफ द जुवेनाइल। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रूविंग ऑफ द एज ऑफ द जुवेनाइल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि भाई अगर आप 18 साल से कम के हैं तभी तो आप JJB के सामने जाएंगे, है ना। फिर दूसरी चीज है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑसिफिकेशन टेस्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज एन ऑसिफिकेशन टेस्ट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यार अभी जैसे इट इज नॉट अ वेरी अननोन कंसेप्ट टू अस कि हमारे भाई रिपोर्ट कार्ड्स पे कोई और एज है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई और एज है, हमारी मम्मी कोई और एज बोलती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंडिया में तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। इन केस ऑफ अ सर्कमस्टेंस वेयर इन द एज ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन नॉट बी असर्टेन्ड
कि यही इस पर्टिकुलर इंसान की एज है और हम इसे पूरा विद क्लैरिटी नहीं बोल सकते हैं, तो इन दैट केस एक ऑसिफिकेशन टेस्ट हो सकता है। अब ये ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, ये आपकी एज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन से भी ये पर्टिकुलर ऑसिफिकेशन टेस्ट ऑर्डर्ड है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि वो जो उस ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो 15 डेज में आप जेजेबी के सामने लेके जाएं। यानी कि क्या, जैसे ही जेजेबी ने ये बोला कि भाई एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा या कुछ होगा, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी रिपोर्ट जेजेबी के सामने लेके जानी है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो पूरा प्रोसेस है ऑफ एज डिटर्मिनेशन, ये 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए ऑफ फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए विद इन 15 डेज, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी हु विल बी वर्किंग विद देम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मानो कोई ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा तो कोई नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, कोई ना कोई तो करेगा, तो उन्हें, या मानो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अगर वो मानो कोई रिपोर्ट कार्ड्स देगा या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स देगा विच इज प्रूविंग द एज और समथिंग, तो उन्हें ये इंश्योर करना है, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंश्योर करना है कि ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मैटर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द गाइडलाइंस विच आर देयर अंडर दिस पर्टिकुलर केस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो न्यूज है वो ये है, बाइगमी, persons involved in live-in relationship without obtaining divorce from spouse may face bigamy charge, ठीक है। Now, first off, let's understand, अच्छा कौन सा कोर्ट बोल रहा है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट बोल रहा है, ठीक है। Now, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज बाइगमी, ठीक है। अब बाइगमी का प्रोविजन इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे। मानो देयर इज अ पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर फीमेल इज मैरिड टू अ मेल, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट आल्सो, इफ देयर इज अ फीमेल एंड दिस पर्टिकुलर फीमेल इज मैरिड टू अ male, and within this particular female what she does, she goes and marries some other particular male, ठीक है, without obtaining divorce from the first husband, तो इस फीमेल के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ बाइगमी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है यहां पे भी कुछ ऐसी ही अराउंड हुआ है, ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या था, that there was this one particular female, ठीक है। ये जो फीमेल थी इनकी किसी से शादी होके रखी थी, ठीक है। लेकिन what does this female do? She was in a live-in relationship with another male, ठीक है। अब नाउ these particular people were seeking protection कि भैया हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर केस ना हो एंड XYZ ना हो। जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये बात की, तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ये है एक इलिसिट रिलेशनशिप, ठीक है, इलीगल रिलेशनशिप, नॉट वैलिड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा दैट wherever a particular married person is in a live-in relationship without obtaining divorce from his or her spouse, तो it may amount to bigamy। तो उन्होंने कहा कि ये जो particular female, in spite of being married to somebody else, that she was in a live-in relationship with somebody else, तो उन्होंने कहा कि इस particular female के ऊपर bigamy के charges लग सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि मैम कैसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस बात को भी जरा समझते हैं, ठीक है। जजमेंट्स जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, जजमेंट्स जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज नोन एज बाइंडिंग जजमेंट एंड द अदर वन इज नोन एज व्हाट, परसुएसिव जजमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मानो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है तो इट इज नेसेसरीली बाइंडिंग ऑन टू ऑल द हाई कोर्ट्स, ठीक है, नेसेसरीली बाइंडिंग। बट एक परसुएसिव जजमेंट जो होता है, मानो अगर एक हाई कोर्ट ने कुछ बोला है तो वो हाई कोर्ट ने जो बोला है इट इज नॉट नेसेसरीली बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर हाई कोर्ट्स। वो एक डायरेक्शन हम एज अ, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो एज अ डायरेक्शन ले सकते कि हमें अपना केस कैसे डिसाइड करना है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो भी एक हाई कोर्ट ने बोला है आपको भी वही उससे ही अग्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था। यहाँ पे ये बात हुई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले कहा था that no offense is committed if two people are in a live-in relationship and they are adults, even they are already married.
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था इससे पहले कि अगर मानो एक पर्टिकुलर कपल है, उनकी ऑलरेडी शादी होके रखी है, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर कपल और समथिंग, अगर यहाँ पे अगर मानो एक कोई इंसान है वो दूसरे किसी इंसान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उन्होंने कहा कि भैया आपने डिवोर्स नहीं भी ली है पहले हस्बैंड से या कुछ, या पहली वाइफ से या कुछ, आपने डिवोर्स नहीं भी ली है, तो उन्होंने कहा तब भी नो ऑफेंसेस कमिटेड। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, वॉट एवर द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज सेइंग, वी आर नॉट अग्रीइंग टू दैट, ठीक है। अब इसी से ही एक सिमिलर केस आया था इन द केरला हाई कोर्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर केस दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट, ये केस अभी भी सब जुडिस है, ठीक है, सब जुडिस है, यानी कि ये केस अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो नाउ देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है, इस फीमेल की ऑलरेडी किसी से शादी हुई थी, ठीक है। अब क्या रहा कि भाई जब इनकी शादी हुई थी तो द वाइफ एंड द हस्बैंड opted for a divorce. The matter was ongoing. The judge, of the case pronounced कि भैया यहाँ पे divorce grant की जाएगी, but उन्होंने order release नहीं किया था। तो इस लेडी के फादर ने constitutionality of the 494 IPC provision which basically deals with bigamy, उसको ही कहा कि भैया ये constitutional नहीं है, on to a lot of grounds. While this matter is still sub judice, so let's just wait कि इसके ऊपर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, but किन grounds के ऊपर उन्होंने इसकी constitutionality को challenge किया है, let's discuss that first. तो यहाँ पे जो बात हुई थी वो बात हुई थी कि भाई आप कहते हो कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट, है ना, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एंड आईपीसी का जो प्रोविजन है दैट इज एप्लीकेबल ऑन टू एवरीबडी, राइट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्योंकि ये पर्टिकुलर बाइगमी का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल है, मुस्लिम्स के ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अभी मुस्लिम मेन आर अलाउड टू कीप 4 वाइफ्स एंड ऑल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार हाउ इज दिस सेक्युलर इन इट्स प्लेस, इट इज नॉट सेक्युलर, क्योंकि ये सबको एक जैसा ट्रीट कर ही नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि यार आपके आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड XYZ, कि भैया हर इंसान इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा, जिसको जैसे जो काम करना है वो करा जा सकता है विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अगर पर्टिकुलर फीमेल है, दिस फीमेल बेसिकली वेंट एंड मैरिड समबडी एल्स, जबकि कोर्ट ने इनका एक डिवोर्स डिग्री, पहले हस्बैंड से जो डिवोर्स डिग्री थी उसे रिलीज नहीं किया था, उसके पहले दिस पर्टिकुलर फीमेल वेंट एंड मैरिड समबडी एल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसी लिबर्टी एंड इक्वालिटी है। उन्होंने कहा कि यार इस पर्टिकुलर फीमेल को किसी और के साथ जाके अगर शादी करनी है, उसके साथ रहना है या समथिंग है, तो हाउ इज दैट, हाउ आर यू इंश्योरिंग द इक्वालिटी एंड लिबर्टी टू दिस पर्टिकुलर फीमेल, यू आर नॉट, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन लैक्स मेंस रिया। अब उन्होंने क्या कहा, एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया। उन्होंने कहा कि भाई एक्टस नॉन फैसेट्रियम या निसी मेंसिट्रिया में क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है दैट नो पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस कैन बी डन इफ एट ऑल देयर इज नो पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन, है ना। क्रिमिनल ऑफेंस होने के लिए मेंस रिया या बैड इंटेंशन या इल इंटेंशन तो होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर कोई बाइगमी करता भी है, ठीक है, तो बाइगमी कब करता है, वो बाइगमी बाइगमी जो होती है वो वहां पे देयर इज नो पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन और बैड इंटेंशन ऑफ एनी काइंड, वहां पे इंटेंशन क्या रहता है, टू गो एंड मैरी समबडी एल्स। तो उन्होंने कहा कोई मेंसरिया तो होता ही नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बात कही कि इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल रॉन्ग जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज हैपनिंग, कि भाई ये पर्टिकुलर फीमेल वेंट एंड मैरिड समबडी एल्स एंड XYZ, ठीक है, while she did not get divorced from the first husband। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये रॉन्ग है भी तो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ रॉन्ग है। How did the state come into being? How is it a wrong against the state? It is not a wrong against the state। फिर उन्होंने कहा कि this particular provision has double standards। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई मानो if there is a particular female, ठीक है, ये पर्टिकुलर फीमेल अगर किसी के साथ इसकी शादी हुई है, ठीक है, एक मानो ये फीमेल है, इसकी किसी के साथ शादी हुई है और ये पर्टिकुलर फीमेल किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आती है, ठीक है, तो जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि नो ऑफेंस इज कमिटेड, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई
आप कहते हो तब नो ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ये पर्टिकुलर फीमेल किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, ठीक है। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर फीमेल अगर किसी और के साथ जाके मैरिज कर लेती है, या किसी के साथ एक मैरिड उसके अंदर आ जाती है, रिलेशनशिप में आ जाती है, उसे लीगली एक्सेप्ट कर लेती है, ऑन पेपर्स एक्सेप्ट कर लेती है इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, तो उसके ऊपर बाइगेमी का चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप इज अलाउड बट मैरिज इज नॉट, व्हाट इज दिस, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार अगर माना चलो कि ये चीज इमोरल भी हो कि वाइल योर फर्स्ट मैरिज इज एग्जिस्टिंग आप जाकर किसी और के साथ शादी कर लो, तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार मान भी लेते हैं कि दिस इज नॉट अ मॉरल थिंग टू डू। तो उन्होंने यहाँ पे यही कहा पर मॉरलिटी तो तब भी सब्जेक्टिव है, व्हाट माइट बी राइट फॉर मी माइट नॉट बी राइट फॉर यू, है ना। अब लाइक इस फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भाई शी वांटेड टू रियली गो एंड बी मैरिड विद समबडी एल्स, इन हर व्यू दैट वाज द राइट थिंग टू डू, मे बी इन आवर व्यू इट वाज नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो उन्होंने कहा मॉरलिटी तो वैसे भी सब्जेक्टिव है। लास्टली फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्कस क्या हुआ, शायरा खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या बात हुई थी, उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में ये बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं उन्हें हमें सर्टेन लेवल ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि कौन इंसान किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं रहना चाहता, क्या उसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, वट एवर इज द डिसीजन, दैट पर्टिकुलर डिसीजन शुड बी वंस ओन, ठीक है। फिर लास्टली उन्होंने ये कहा दैट लिव इन रिलेशनशिप इज अराइजिंग फ्रॉम राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, कि भाई किसको किसके साथ रहना है नहीं रहना है उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चैलेंज कर दिया है। नाउ दिस पर्टिकुलर मैटर स्टिल सब जुडिस, सो लेट्स वेट एज टू व्हाट इज द जजमेंट ऑन टू दिस। एंड विद दिस we are done for the day and I hope you had a nice session, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। In case you do like our session, so do like the video, and if you want you could register for our free demo classes by filling the form. The link for it is in the description box below. See you, bye bye, have a nice day.